So hello everyone, welcome back to Financial Nirvana Silver Module. Today we are going to learn two beautiful topic if time allow. The first is about finding out the strength of IPO. अच्छा है, बुरा है, एवरेज है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए. There are thousands of questions comes into your mind. How many of you think that IPO investing is for the long term? कितने लोगों को लगता है IPOs are for the long term investing? No. IPOs are only for the short term games. क्यों? The company who is listing, there are high chances this is not 10, 20, 30 years old company. कितने लोगों को लगता है कि जो भी कंपनी लिस्ट होती है वो 30 इयर्स की बैकग्राउंड होता है? उनका नहीं होता. 30 इयर्स का बैकग्राउंड होता तो 15-20 साल पहले लिस्ट हो चुका होता. तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस कंपनीज आर न्यू, वेरी फ्यू आर ओल्डर वन. तो इट इज नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म. सेकंड, वी डोंट हैव प्राइस मूवमेंट डेटा. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी आती है आपके पास, बोलती है माई वैल्यूएशन इज 1000 करोड़ और 1000 करोड़ में आपसे लेना चाहता हूँ. शार्क टैंक देखा है ना सब लोगों ने? They give the valuation of their own company. Do you believe on that every time? No. Because their own analysis, चाहे वो CA से भी करवाएंगे तो पैसा देके करवाएंगे. The real valuation कैसे पता लगेगा आपको? How you are going to find out the real valuation? Market कुछ value. सालों के बाद, कुछ टाइम के बाद पब्लिक बाय करेगी, सेल करेगी, वो ऑटोमेटिकली अपने वैल्यूएशन पे आ जाएगा. इट टेक अ ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर. उससे पहले नहीं पता लगेगा. करेक्ट? समझ में आया इतना पार्ट या नहीं आया? हाँ. तो योर आईपीओज आर ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म. क्या लिस्टिंग डे पे आपको कितना मिलता है या पहले 15-20 दिन में कितना मिलता है? And sometime it depends on market conditions also. Whenever IPO is coming, majority of time you will see the IPOs are always coming when market is in bullish mode. Yes or no? कभी bearish market में आपने कोई IPO देखा है? No. 2008, 2007 बहुत IPOs आए थे. When market was on top, the biggest IPO came from Reliance Power. How many of you remember 2008 January Reliance Power? याद है? And from that day market started crashing. Reliance Power के 3 महीने बाद एक और IPO प्लान था. Which company? ऋषिराज सर नहीं है, ऋषिराज works for that company. MRMGF. MRMGF का IPO प्लान था that was expected to bigger than our Reliance IPO. But वो cancel हो गया. Why? Because market has crashed. और जब मार्केट क्रैश होता कोई भी आपसे पैसा मांगने आएगा क्या? नहीं आएगा. If somebody is coming to ask you money, that means market is positive और आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको पैसा दे दोगे. तो bear market में there are no IPOs coming. From last 1 year, last 6 months, how many of you seen any IPO? No. But उसके पहले every week we found 2 or 3 IPO. जब market bullish mode में था, everybody was trying to take money from your pocket because momentum is positive. Everybody is ready to push money into the market. Yes or no? अभी fresh investment नहीं आ रहा है. Yes. So they are not asking you money. The first important thing, if IPOs are coming, they are just willing to take money out of from your pocket and put into their business, ताकि उनका business चले. That is the main purpose. Correct? So IPOs are never for the long term investment. और बहुत अच्छी कंपनी है जो एक्चुअली अब तक लिस्ट नहीं हुई थी. एंड आइडियली अगर वो लिस्ट नहीं हुई थी तब तक उन्होंने ग्रोथ के बारे में नहीं सोचा था. नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट ग्रोथ. दैट्स गुड. तो डू यू हैव एनी आइडिया कौन सी कंपनी है जो अभी तक मार्केट में लिस्टेड नहीं बट दे आर ब्रिलियंट कंपनी इन देयर एरिया? एनीबॉडी? नो आइडिया. लाइक वैल्यूएशन की हम बात कर रहे थे. पेटीएम हैज डन देयर ओन वैल्यूएशन, Zomato has done their own valuation, but market ने उनको अपना actual valuation दिखाया. Then people started saying that they overvalued. They were overvalued, but everybody believed in that और वो allow किया गया. Correct? Byju's, one good company. How many you think? Byju's and Akash, they are good company, not listed in the market. Parle-G is one of them, not listed into the market. Anything else? कोई और company आपको लगता है that is not listed in the market? Parle-G not listed. Not listed. Parle Technologies है जो आप देखते हैं. Parle-G is not listed. Parle Agro, ultimately Parle Agro जो बिस्किट्स बनाता है या सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बनाते हैं, that is not listed. And the one another good company that is coming, yes, बोलिए विनय सर. टाटा का रहा था कुछ जी. टाटा टेक्नोलॉजीज का कुछ नया आईपीओ वाला. थोड़ा सा लाउड पूछिए, बताइए क्या क्वेश्चन पूछे थे जावेद सर. टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है.
हाँ, एक आईपीओ आ रहा है, हम उसी की बात करेंगे। एक की आज बात करेंगे, सबकी नहीं। विनय सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट में डाल दीजिए अपना क्वेश्चन, दैट विल बी गुड। यस, बायजूस इज हाईली ओवर वैल्यूड, बट अभी तक वो वैल्यूएशन अपना निकाला है उसने। जीरोधा ने अपना वैल्यूएशन खुद निकाला है। देयर सीईओ मिस्टर कामत इज चार्जिंग 100 करोड़ सैलरी। किसी ने जस्टिफाई किया? नहीं। 3 पार्टनर्स है, 300 करोड़ सैलरी गया, तो उसी हिसाब से उसका वैल्यूएशन भी आएगा जब भी आएगा। तो इट नॉट नेसेसरी कि आप पहले दिन उसमें जाओ, कूदो और इन्वेस्टमेंट करो। वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी। पेटीएम में अगर आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज की रेट में आपका पैसा 30-40% माइनस होता। तो वॉज दैट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट और इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? It is मे बी आज भी ना हो, आज भी ना, बट वो तो गलत था डेफिनेटली। सेम हैपन विद जोमेटो, सेम हैपन विद LIC. LIC was, I cannot say highly overvalued, but at least very costly. अभी वो 40% डिस्काउंट में मिल रहा है। एंड वी ऑल हैव डिस्कस्ड, जो भी मॉर्निंग वेल्थ क्लब में आते थे उस टाइम पे, वी डिस्कस्ड LIC की नहीं बाय करना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए, बिकॉज दे आर टेकिंग इट रॉन्ग वे ऑफ वैल्यूएशन। या फिर वो जो पैसा ले रहे हैं आपसे, वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वाई वी आर इन्वेस्टिंग इन द IPOs? बिकॉज कंपनी जब आ रही है, वो आपसे पैसा ले रही है, उसका करेगी क्या वो? LIC के पास कोई फ्यूचर ग्रोथ नहीं था कि वो पैसे से ब्रांचेस खोलेगी, एडवाइजर्स बढ़ाएगी, कुछ भी ऐसा ग्रोथ नहीं था। ओनली थिंग इज वो पैसा लेके उसको गवर्नमेंट को देना था, बिकॉज गवर्नमेंट का प्लान अपनी कंपनीज को बेचने का है। तो इफ दे आर नॉट प्लानिंग फॉर एनी ग्रोथ, शुड यू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म? नो। no. व्हाट वी डिड नॉट इन्वेस्टेड। अभी अपने को 40% डिस्काउंट मिला, हम अभी भी नहीं करेंगे। अभी भी हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, राइट? सो वन गुड कंपनी दैट इज कमिंग इज हियर, and I must say Mankind Pharma. The IPO of Mankind Pharma is coming. How many of you are aware about it? Just looking at the name, how many of you think it's a good company? Good company. Good company, just wave your hand or raise your virtual hand if you think it is a good company. अभी हमने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ नाम सुना है, सिर्फ नाम से पता लगता है कंपनी बहुत अच्छी है। यस, 2 3 4 5 लोग, ठीक है, नाम से लगता है अच्छी कंपनी। तो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज इट? तो अभी क्या करते हैं हम, जब IPO का नाम डालते हैं गूगल के ऊपर, यू गॉट लॉट ऑफ डेटा। कंपनी का पुराना डेटा मिलेगा, हिस्टोरिकल डेटा भी उन्होंने IPO फाइल करने के लिए दिया होगा, तो आपको अलग अलग वेबसाइट्स में मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, चित्तौड़गढ़ पे आपको मिल सकता है, बिजनेस टुडे पे मिलेगा, एंजल वन ने देखा है, मतलब ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स उसका सारा डेटा जो उन्होंने सबमिट किया है सेबी को, वो उसको अपनी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं। क्यों पब्लिश करते हैं ये लोग? Why they are publishing all this data? All money control, ये सब क्यों कर रहे हैं? Why they are doing this? Advertising. नहीं, वो advertising People know नहीं that करेंगे। information. Why Upstock is advertising for anyone? Upstock was the most beneficiary when LIC IPO was there. क्यों? Majority of people open their new account to buy LIC. Yes or no? Right. LIC ने क्या किया? 10% मैं अपने पॉलिसी वालों को दूंगा जिन्होंने मेरी पॉलिसी खरीदी है। Right. एक 1.5 करोड़ पॉलिसी वाले लोग हैं, तो मतलब 10% तो रिजर्वेशन नहीं हुआ, वो 90% में ज्यादा रिजर्व्ड है। 90% में ज्यादा चांसेस है उनको मिलने का जनरल पब्लिक के थ्रू। बट अगर वो 10% रिजर्वेशन में जाएंगे तो देयर इज लो चांसेस, बिकॉज पॉलिसी होल्डर्स आर हायर। तो व्हाट द मिनिमम कंडीशन वाज, यू मस्ट हैव टू हैव अ डीमैट अकाउंट to apply for an IPO. Yes or no? This is the minimum account. Most of the LIC policy holders, they are aware about demat account. No. They are aware about stock market. No. So who got No. benefited? Zerodha and Upstock. That's why they advertise for them. Indirectly, they are supporting LIC, but somehow they are actually getting new account. Few lakhs of new account was open for Reliance Power at that time and LIC at this time, because they are attracting new people. These are attractive words, correct? तो अभी हमको क्या करना है? We'll go to one of this link. मैं एक लिंक आपके सामने ओपन करता हूँ and we'll go in detail कि वेबसाइट क्या किस तरह से काम करता है. So let's go here and just read this about the company Mankind Pharma. What is their business?
develop manufacture of pharmaceutical formulations across various acute chronic therapist areas, several consumer healthcare product. किसको समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? आगे पढ़ोगे तो कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, डायबिटीज, एंटी डायबिटीज, न्यूरो, सीएनएस, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन. कुछ समझ में आया? हाँ या ना तो बोलो. नहीं आया तो नहीं आया. नहीं आया समझ. मेरे को नहीं आया समझ, बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू मेडिकल फील्ड. तो जरूरी नहीं कि मुझे ये सब समझ में आए, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड द ब्रांडिंग, ये तो मुझे समझ में आएगा ना. मैनफोर्स, मॉक्सिकाइंड, एल्मोकाइंड, अनवांटेड किड, कैंडीफोर्स, ग्लिमस्टर, प्रेगा न्यूज, अ बिग ब्रांड. देन क्या है? न्यूरोकाइंड. ये सब में से कोई ना कोई मेडिसिन आपने यूज किया होगा. यस और नो? अनवांटेड 72, टेलमिकाइंड. क्या आपने इसमें से कोई भी मेडिसिन कभी यूज नहीं किया या कभी किसी का ऐड नहीं देखा है? यस और नो? हैव यू यूज्ड द प्रोडक्ट? नहीं यूज किया? हाँ सर, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक sir. यूज किया है. और शिल्पा Yes, शेट्टी yes. का तो बहुत ऐड आता टीवी पे. पहले करीना कपूर का ऐड हम आता लोग था के इसको BP का- लेके. दैट मींस हम लोग के ब्रांडिंग इज BP गुड और ब्रांडिंग इज एवरेज. बीपी अम्लोकेन है ना, अम्लोकेन बीपी आप लोग बीपी के लिए यूज करते हैं, राइट? तो इनमें से कोई ना कोई तो आपने कहीं के ऐड देखा होगा या यूज किया होगा. करेक्ट? एंड द गुड लाइन, Yes. just read it out loud. Mankind Pharma has one of the largest distribution networks of medical representative for Indian pharmaceutical market. What is the meaning of this? सबसे ज्यादा MR इस कंपनी के हैं. What MR do? Any rough idea? MR क्या करते हैं? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मेडिकल मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं? वो ये सेल करते हैं एक्चुअली से. ये मतलब इनडायरेक्टली सेल करते हैं. डॉक्टर को जाके बोलते हैं कि हमारे वाला दवाई प्रिस्क्राइब करो. शायद डायरेक्ट सेल नहीं, बट इनडायरेक्टली वो सेल करते हैं. हाँ गिफ्ट देंगे, ये करेंगे, लेकिन डॉक्टर के साथ कोलैबोरेट करने का काम करते हैं. तो इट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एमआर. दैट मींस सेल्स टीम. यस और नो? हाँ. And the second point is over 80% of doctors in India prescribe their medicines. Good. मतलब 80% जो इनका क्लाइंटेल है वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है. नए डॉक्टर्स कन्वर्ट करने के लिए इनका सिर्फ 20 बच्चे, बट 80% डॉक्टर्स तो इनको रिकमेंड करते ही हैं. एंड इट इज द 4th नंबर इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेल्स. 4th लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स. गुड और बैड? Good. बेस्ट ऑफ भारत अवार्ड 2022 में इनको मिला था. सिल्वर मेडल मिला था, नेशनल अवार्ड मिला था, ये अवार्ड मिला था, रिकॉग्निशन हो गया. मैनकाइंड इज अ पैन इंडिया मार्केटिंग प्रेजेंस. 11,000 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनके पास. 3,500 फील्ड मैनेजर्स हैं. ये 2022 दिसंबर तक का डेटा है. 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इनके पास. 25 फैक्ट्रीज हैं इनके पास जहां ये काम करते हैं. करेक्ट? और 4,000 पीपल आर देयर जो उस फैक्ट्रीज में काम करते होंगे. राइट? अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ पे? 600 साइंटिस्ट हैं इनके पास. डेडिकेटेड इन हाउस R&D सेंटर्स हैं जो अलग अलग बीमारियों पे R&D करते हैं. कहाँ पे है इनके पास? IMT मानेसर. एवरीबॉडी नो IMT मानेसर क्या है? मानेसर के अंदर एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IIT मानेसर. देन गुड़गांव में है, हरियाणा में है, थाने में है, महाराष्ट्र में है. व्हाट दैट मींस? दे हैव ओवरऑल नॉर्थ इंडिया एंड महाराष्ट्र. साउथ इंडिया में नहीं है इनका प्रेजेंस. ईस्ट ऑफ इंडिया में नहीं है प्रेजेंट, लेकिन नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया इन्होंने कवर किया हुआ है. दैट ओके. यहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं. चलिए आगे चलते हैं. अभी डिटेल्स क्या है? IPO 25th को आ रहा है, 27 तक रहेगा. ₹1 इज फेस वैल्यू. प्राइस है ₹1,000. दैट मीन्स आइडियली प्राइस रुपीज अगर ₹10 होता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता एक स्टॉक का? ₹10,000 पर शेयर. गॉट इट? ये अपना वैल्यूएशन जो दे रहे हैं वो ₹10,000 पर शेयर दे रहे हैं. कॉस्टली लग रहा है या ठीक लग रहा है? कॉस्टली है. थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है. ₹10,000 फॉर 1 शेयर. आइडियली इसके अलावा डिविस लैब का शेयर कितने का है शौविक? 4,500. 3,200. 3,000. और फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू गूगल करो, फटाफट गूगल करके बताओ फेस वैल्यू कितना है उसका. साइज ऑफ इश्यू इज 4,300 करोड़. मतलब 4,300 करोड़ का ये इश्यू है. करेक्ट? ऑफर फॉर सेल सेम अमाउंट. क्या होगी? फेस वैल्यू ₹2 का है. ₹2 है, यानी 5 टाइम्स करोगे तो
15,000, 15,000. ये बोल रहे हैं 10,000, देन ओके चलेगा। अगर मार्केट में जो कॉम्पिटिटर है उनका शेयर का प्राइस आइडियली 15,000 14,000 आ रहा है, डिविस लैब इज नॉट दैट बिग कंपनी जितना मैनकाइंड फार्मा है, तो उसके हिसाब से 10,000 रुपीज इज ओके है। चलो, ओपनिंग डेट इज 25, क्लोजिंग डेट इज 27, यानी कल से स्टार्ट होकर 27 थर्सडे को खत्म हो जाएगा। इन सर, दो डेट्स के बीच में आपको अप्लाई करना है। यस, तो प्राइस से तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक शेयर कितना परसेंट ओनरशिप दे रहा है कंपनी का, उस पे डिपेंड करता है ना। फेस वैल्यू पे आता है, वो फेस वैल्यू के अगेंस्ट आप कंपेयर कर सकते हो। ओके एक रफ आइडिया है, नॉट फेयर आइडिया, बट रफ आइडिया आपको मिल सकता है। ओके करेक्ट। फेस वैल्यू का मतलब ही क्या है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे इतनी है, ये इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1/10 कर दी ताकि उसका प्राइस छोटा दिखे। करेक्ट। चलो आगे चलते। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, इनिशिएशन ऑफ रिफंड, अगर 3 तारीख को आपको रिफंड अलॉटमेंट मिल जाएगा, नहीं तो 4 तारीख को अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। स्टॉक्स आपको 5 तारीख को मिलेंगे, लिस्टिंग है 8 मई को। करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये चीज। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपने 27 को अप्लाई किया 329 330 पे, तो बहुत लोगों को लगता है कि सर क्लोज हो गया, मैं तो पेमेंट नहीं कर पाया, बट यू आर अलाउड टू पे अप टू 5 PM बाय यूपीआई मैंडेट। अगर आपने यूपीआई मैंडेट सेलेक्ट किया है तो 330 तक अपने ब्रोकिंग अकाउंट में अप्लाई कर लो 329:59 सेकंड्स पे। व्हाट इज द टाइम? 3:29 59 सेकंड्स तक। बाद का यूपीआई पेमेंट आप 5 बजे तक कर सकते हो, उस क्योंकि यूपीआई अलर्ट आने में टाइम लगता है, कभी 5 मिनट 10 मिनट का डिले हो सकता है, चलेगा। QIB शेयर 50% है, HNI को 15% है, रिटेल यानी हमारा कोटा कितना है 35%, तो 4,000 करोड़ में से 35% हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स के लिए है। इट्स लिटिल बिट हायर साइड। नॉर्मली लोग रिटेल ट्रेडर्स को 10 से 15% देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते हैं। चलो आगे चलते हैं। रिटेल को एक लॉट है, 13 का साइज है, या आप मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हो, तो 182 शेयर मिलेंगे। तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, हाउ मेनी यू थिंक आपको मल्टीपल लॉट बाई करना चाहिए, तो अपने अकाउंट से करेंगे? अगर आपका मूड बन गया कि सर मुझे 5 लॉट करने हैं अप्लाई, तो क्या 5 लॉट आप अपने अकाउंट से अपने नाम से करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? नो सर, अलग अलग अकाउंट से। अलग अलग अकाउंट से करने चाहिए, Different. रियली वांटेड टू अप्लाई फ्रॉम 2 अकाउंट। देन HNIs के लिए 15 to 71 है, और BHNIs के लिए, BHNIs क्या होता है उसको देखना पड़ेगा, उसके लिए इतना है। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग कितनी है? 79%। और अगर ये इश्यू आएगा इसके बाद बचेगी 76.5। इज इट गुड और इज इट जस्ट एवरेज? जो भी हमने फंडामेंटल एनालिसिस में पढ़ा था, गुड। इज इट गुड? 76.5 इज गुड होल्डिंग। करेक्ट होना चाहिए इतना, तो हम 60 के बिलो आता है, और स्पेशली नए आईपीओ में तो 70 के बिलो आता है तो गड़बड़ है। दैट मीन्स वो अपना कॉस्ट कवर कर रहे हैं, दैट्स गुड। आगे आते हैं फाइनेंशियल पे, जो फाइनेंशियल इन्होंने सेबी को सबमिट किए हैं। तो इन्होंने क्या क्या सबमिट किया, लेट्स टेक अ लुक एंड यू कैन म्यूट ऑन। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट विल हेल्प अस टू टेक डिसीजन। क्या है? इन्होंने मार्च 20 का रिजल्ट दिया है, ओके। फिर मार्च 21 सेकेंड ईयर का रिजल्ट दिया है, देन दिसंबर 21 का रिजल्ट दिया है, मार्च 22 का रिजल्ट दिया है, और दिसंबर 2022 का रिजल्ट दिया है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ये सारा का सारा डेटा हमारे काम का है? ये सारे रिजल्ट हमको काम के हैं? यस और नो? यस सर। थिंक नो, क्योंकि ये एनुअल रिजल्ट है, ये भी एनुअल रिजल्ट है। क्या ये एनुअल रिजल्ट है? नो, ये 3 महीने का रिजल्ट है, बट ये इसी साल का पूरा एनुअल रिजल्ट है, यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का रिजल्ट हमको यहाँ मिलेगा। लेकिन अगर हमें इन दोनों से कंपेयर करना है तो हमको पूरा 1 साल का डेटा चाहिए, तो हम इसको ही कंसिडर करेंगे। तो अभी के लिए हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, जस्ट फॉरगेट दिस, क्योंकि इसका ही बड़ा भाई हमको यहाँ मिल रहा है। अभी लास्ट ईयर का 31 दिसंबर तक का है, दैट मीन्स ये हमारे लिए ऊपर से कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ये ईयरली, तो ये क्वार्टरली या 9 महीने के रिजल्ट से हमें फायदा नहीं। बट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट टेक दिस एज 9 मंथ, और इससे हम 12 मंथ का टेंटेटिव आइडिया निकालेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं। तो हम असेट की बात करते हैं। 2020 में इनका असेट था 5,000 करोड़ का, मार्च 21 में हुआ 6,000 करोड़। गुड, गुड। 30% इंक्रीज, दैट्स गुड। देन अगेन 63 से 91,000 करोड़, वाओ, 9,000 करोड़ सॉरी, अगेन 40% इंक्रीज, 33%, दैट्स गुड। बट इस साल असेट में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है,
अगले 3 महीने यानी मार्च 23 तक भी आएंगे तो थोड़ा सा मान लो 96 97 तक जा सकता होगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। बट ओवरऑल असेट साइज इज गुड। इस साल इन्होंने बहुत अच्छा रिकवर नहीं किया, बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं किया, लेकिन पहले की ग्रोथ अच्छी थी। रेवेन्यू कितना है? 6000 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। हाँ सेल है मार्च 2020 का, मार्च 2021 में 6300 करोड़ का रेवेन्यू है। गुड गुड या नॉट गुड? गुड। लेकिन मार्च 2022 में 8000 करोड़ हुआ। ये ग्रोथ और ये ग्रोथ बहुत इंप्रूव ज्यादा है है, या रिड्यूसिंग है? इंक्रीज है। इंक्रीज है। ब्रिलियंट। हाँ अभी क्या हुआ? अभी ये इनका 9 मंथ का रेवेन्यू है, हाँ यानी 67 6.6 बोल सकते हैं। 6.6। तो अगर इसको 12 महीने का करना होगा तो कैसे करेंगे? 8.8 कितना आ जाएगा? 8.8 आ जाएगा टेंटेटिवली, राइट? थोड़ा कैलकुलेट सा करते ज्यादा। हैं, 8.9 मान के चलते हैं। हाँ 8.9 के करोड़। तो अभी भी 1000 मानो से। इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो 8000 से 9000 करोड़, इज इट एज गुड एज प्रीवियस वन? नो। थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, क्यों? व्हाट कुड बी द रीजन? कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है? नहीं, शायद कोविड के बाद ज्यादा सेल हुआ होगा, उस वजह यस, से बीच में बहुत ज्यादा आ गया था। बिकॉज February March April of 2022, no 2022, 2021 was second wave। ये वाला टाइम के बाद, मार्च के बाद क्या आया था? सेकेंड वेव आया था, दैट वाज मोर डेंजरस। एंड हु वाज द बेनिफिशियरी? बताइए 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 बताइए। सर मेडिकल, जैसे सैनिटाइजर, ये सैनिटाइजर। तो मैनकाइंड वाज डूइंग गुड इन दैट टाइम, उसका भी हाँ। अच्छा सेल हुआ होगा, उसका भी मेडिसिन अच्छा बिका होगा, ऑक्सीमीटर्स बिके होंगे। तो दिस कुड बी द रीजन कि यार यहाँ पे उनका बहुत अच्छा ग्रोथ आया, बिकॉज वेव 2 में ज्यादा लोगों ने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं, वो ज्यादा डरावना था। पहले वाले वेव में तो हम घर में बैठे थे, बहुत ज्यादा हमको जरूरत नहीं पड़ी थी, बट वेव 2 में ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी। कैन वी कनेक्ट इट विद दिस? मान सकते हैं ये बात? दैट मीन्स ये आपका एक साल अच्छा रिजल्ट रहा, तो उसका इंपैक्ट अगले साल आना है। आपको उतना अच्छा रिजल्ट अगले साल भी नहीं मिलेगा। डन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि इतना रेवेन्यू आया, उस रेवेन्यू में से इनका प्रॉफिट कितना था? करेक्ट। तो 6000 में से 1000 प्रॉफिट था, ओके। यहां भी 63 में से 12,000 प्रॉफिट था, 1200 प्रॉफिट था। 1200 करोड़ और 1000 करोड़, 20% इंक्रीज। फिर 1400 करोड़, अगेन सिमिलर। और यहाँ पे भी अभी ये 3 महीने का बाकी है इसमें, तो इसमें ऐड कर लो 1/3, तो कितना जाएगा? जैसे ये और 3 के आसपास। 3000 समथिंग 3000 ऐड कर 3.3 लेते ऐड हैं, होगा। yes। तो भी थोड़ा सा प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से रिड्यूसर। सेल रिड्यूस हुई है, तो प्रॉफिट भी रिड्यूस होगा। दैट मीन्स वो वेव 2 का ही अच्छा प्रॉफिट था जो उनको मिला। नेटवर्थ कितना है कंपनी के पास? नहीं नहीं, 3000 सेल करोड़। बढ़ yes। रहा है बट प्रॉफिट नहीं रिड्यूस हो रहा नहीं, है। यहाँ सेल कम हुआ ना, 2022 से लेके अभी तक सेल में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। हाँ, नहीं, जैसे थोड़ा सा सेल बढ़ा, यस। ये तो 9 मंथ्स का सेल है। 7.9 से 8.9 तक सेल हुआ, हाँ थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीमेंट है, करेक्ट। और यहाँ पे कम इंक्रीमेंट है या नेगेटिव में है, तो सेल बढ़ा, नेगेटिव। प्रॉफिट कम हुआ। हाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट किया था, मे बी हाई कॉस्ट में मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग उन्होंने प्राइसेस बढ़ाई हो, बाद में कम कर दी हो, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग उस टाइम बहुत ज्यादा हुई होगी। ये हो सकता है, पॉसिबल है। डिस्काउंट नहीं दिए उन्होंने, हाँ। हो सकता है कि डिस्काउंट नहीं दिए, चलेगा। डॉक्टर्स को गिफ्ट देने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी थी, जो कि इनकी कॉस्ट है। सबसे बड़ी कॉस्ट तो यही आती थी इनकी, वो कम हो गया। नेटवर्थ कितना है? 3000, 47, 6000, 7000। ग्रोइंग और नॉट ग्रोइंग? ग्रोइंग सर। नेटवर्थ इज ग्रोइंग। तो असेट इज गुड, रेवेन्यू इज गुड, प्रॉफिट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, नेटवर्थ इज गुड। अब इनका सरप्लस कितना पैसा है, रिजर्व कितना है? तो जितनी कंपनी की नेटवर्थ है ऑलमोस्ट उतना ही इनके पास सरप्लस भी है। 3446 आसपास ही है, ये भी आसपास है। अभी इस बार का डेटा उन्होंने नहीं नहीं दिया। दिया है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, बोरोइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोरोइंग? कंपनी के पास कोई डिप्ट। कोई डेट है, असेट की साइज के हिसाब से डेट कंफर्टेबल है? बहुत कम है। बहुत कम है, छोटा सा है, करेक्ट। और ये एसेट के साथ 10% भी ग्रो नहीं हो है। रहा है, ग्रो हो रहा है। इट्स 3%, हार्डली 2.5%, करेक्ट। 126 से इंक्रीज हुआ बोरोइंग, 234 हुआ। यहाँ ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ, 868 करोड़।
और फिर रिड्यूस हुआ। दैट मीन्स इन्होंने अपना काफी सारा लोन जो था वो चुकाया है। इफ यू नोटिस दिस, हर कंपनी आईपीओ से पहले ये करती है, क्योंकि अच्छा दिखाना भी होता है कि हम लोन लेके अपना आपसे पैसा लेके हम अपना लोन चुकाएंगे, क्योंकि उसकी कुछ कॉस्ट है, इस बोरोइंग की कुछ कॉस्ट है। दैट्स व्हाई दिस कुड बी द रीजन कि इस बोरोइंग की वजह से इनका प्रॉफिट रिड्यूस हुआ हो, उस पर भी हाँ इम्पैक्ट आया हो, क्योंकि उसका भी कॉस्ट उनको पे करना होगा। और यहाँ पे प्रॉफिट कम होने का रीजन क्या है कि उन्होंने शायद ये पार्ट दिया होगा। पे कर दिया, तो प्रॉफिट ऑब्वियसली कम होगा। किसी से मैंने लोन लिया, मैं लोन रीपेमेंट करूंगा तो ऑब्वियसली मेरी पॉकेट में कम पैसा बचेगा। दैट कुड बी वन रीजन। तो अभी जो हमको ये नेगेटिव लग रहा था, आई थिंक अब ये पॉजिटिव हो गया। हाँ करेक्ट, क्योंकि इस पार्ट को मैं ऐड कर लेता हूं तो ये आराम से ऊपर चला जाएगा पिछले साल के से। करेक्ट, तो प्रॉफिट हाँ इज गुड। तो अभी तक इस पार्ट में कोई नेगेटिव आपको नजर आया? नहीं। Asset is good, revenue is good, profit is good, net worth is good, borrowing is good. That means जो ब्रांडिंग हमारे माइंड में है कंपनी की कि अच्छा ब्रांड है, क्या कंप्लीट? पेपर भी वो वैसा ही परफॉर्म कर रहा है। राइट और रॉन्ग? यस। करेक्ट। तो दिस इज गोइंग गुड। चलो आगे चलते हैं। दैट मीन्स इस बेसिस पे, और एक सबसे मेजर क्राइटेरिया, इस बेसिस पे आप लोगों का डिसीजन क्या है, क्या करेगी कंपनी? अच्छी है, बुरी है? अच्छी है। अच्छी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? प्राइस टू अर्निंग इज 32। आइडियली हमारा कितना होना चाहिए प्राइस टू अर्निंग? 20। 20। थोड़ी सी कॉस्टली है प्राइस के हिसाब से जो इन्होंने 1000 रुपीज रखा है। करेक्ट। मार्केट कैपिटलाइजेशन और 43,000 करोड़ चलेगा, गुड। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटीज 27%, गुड। कितना होना चाहिए अपने थियोरेटिकल हिसाब से? 15 प्लस इज गुड, 15 to 20 is comfortable range, yes or no? यस सर। Correct. Return on capital employed, same, it is again good. Earning per share कितना है? 33. Is it good? कितने लोगों को याद है what was our theoretical value? सर अर्निंग पर शेयर शुड बी लाइक 20% ऑफ, लाइक 5 साल में आ जाना चाहिए पैसा। कॉस्टली, यानी कि इतना ये कॉस्टली है उतना ही ये भी कॉस्टली है, बट बहुत ही ज्यादा कॉस्ट। बहुत ज्यादा तो अभी आपको और महंगे भी दिखेंगे ना। कैन वी कंपेयर इट विद सम अदर? तो ये आपका असाइनमेंट है। इसको डिविस लैब के साथ कंपेयर कर सकते हो, या जैसे और कोई कंपनी है इंडिया के अंदर जो फार्मास्यूटिकल वाली है, आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, फाइंड आउट कि उसका पी क्या है, उसका आरओई क्या है, उसका ईपीएस क्या है, एंड देन यू विल फाइंड आउट कि उससे बेटर है कि नहीं। जैसे हमने किसमें किया, जैसे हमने इसके अंदर किया, जो प्राइस है फेस वैल्यू के अगेंस्ट जो प्राइस है, इसमें हमने कंपेयर किया कि फेयर वैल्यू कितना होना चाहिए। तो फेयर वैल्यू हमको 1500 मिला, दैट इज ओके, तो जस्टिफाइड है। तो उसको भी आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट पैरामीटर के ऊपर। What is the important parameter? The company will not receive any proceed from the offer. What does mean? All the offer proceed will be received by selling shareholders in proportion to the offer shared sold by respecting selling shareholders. मतलब क्या हुआ इसका? कौन समझाएगा इसका मतलब क्या हुआ? कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसका कहने का मतलब है कंपनी को ऑपरेशंस के लिए कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। एज गुड एज LIC, एज गुड एज IRCTC। वो लोगों ने अपना IPO लाके पैसा क्या किया? कहीं अपने बिजनेस में लगाया? नहीं लगाया। वो पैसा किसको मिला? गवर्नमेंट को मिला, जो भी ओनर है। दैट मीन्स अभी इस केस में क्या कर रहे हैं, जो स्टेक होल्डर हैं वो अपना शेयर निकाल रहे हैं। तो अपन ने क्या देखा था, 3% दे आर रिड्यूसिंग। तो जो 3% रिड्यूसिंग है, ये पैसा सीधा का सीधा उनकी पॉकेट में जाएगा। इज इट गुड, इज इट बैड? बैड सर। दिस इज एक्चुअली नॉट दैट गुड जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो लिस्ट है कंपनी के प्रमोटर्स हैं, ये अपना माल बेच के भागने की तैयारी में नहीं है। ये लोग इस पैसे को जेन्युइनली कंपनी के ग्रोथ में यूज करेंगे। तो यहाँ पे ग्रोथ में यूज करने वाला फीचर मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। करेक्ट। मेजर डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट गोइंग पब्लिक विद OFS इश्यू, ऑफर फॉर सेल है, डाइल्यूटिंग 10% नाउ। 10% अभी भी जो उसका हिस्सा है उसमें से ये लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आके अपना हो जाता है थोड़ा सा नेगेटिव व्यू। अभी बताइए आपको क्या लगता है, इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद, व्हाट इज योर व्यू? शुड यू अप्लाई, शुड अवॉइड?
Avoid. vote? Can we have vote in the chat box? Yes or no? Type yes or no in the chat box, everybody. No. Kailash sir, no. Pramod sir, no. Sukumar sir, no. Dhanlakshmi ma'am, no. Vinay sir, yes. No, no, no. Majority of people are saying no. एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अपना डिसीजन लेने में काम कर सकता है. व्हाट इज दैट? व्हाट कुड बी दैट फैक्टर अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स? फंडामेंटल्स हमने देखा बहुत अच्छा है कंपनी का. ओनली थिंग इज उस पैसे का करना क्या है वो क्लैरिटी इनको नहीं है. या ये कह सकते हैं कि इनको पैसों की जरूरत नहीं थी. एक्चुअली इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इस पैसे का क्या करेंगे इनको नहीं पता. तो मैं मालिक हूं तो मैं सोच रहा हूँ यार कम से कम मैं अपना स्टेक रिड्यूस कर रहा हूँ. दैट इज द रीजन कि ये पैसा पब्लिक से लेना चाह रहे हैं. करेक्ट? ये बात सबको समझ में आई? दैट मीन्स पैसा लेके इनको बिजनेस बढ़ाने का नहीं है. स्टिल यू वांट टू अप्लाई, गो विद वन लॉट ओनली, नो मल्टीपल लॉट. सेकंड, ये डिसीजन हम कब लेंगे? फाइनल डिसीजन कौन सी डेट को होगा? लास्ट डे को 27. लास्ट डेट को होगा. ऑन द बेसिस ऑफ ओवर सब्सक्राइब हुआ तो 27 तारीख को 3 बजे यू डिसाइड लेना है कि नहीं लेना है. और यू अप्लाई बट डोंट गिव द यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन. वो नहीं देना है. 3:30 तक आपको पता लग जाएगा कितनी एप्लीकेशंस आई है. आ जाएगा तो 3:30 एवरीबॉडी विल नो कि कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है. 2 टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है, 4 टाइम्स हुआ है. भूल जाओ, लीव इट. बिकॉज अलॉटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी हाई है, दैट मीन्स डिमांड इज लेस. और अलॉटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर लो है, दैट मीन्स डिमांड इज हाई. अगर ये 8x या 10x सब्सक्राइब होता है, आई विल अप्लाई विद 2 लॉट्स, मे बी 3. बट अगर नहीं जाता है वहां तक तो 1 लॉट एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करेंगे. अगर नहीं किया आपने कभी भी, डू इट फॉर वंस. मार्केट इज गुड, मार्केट अच्छा जा रहा है तो आपको 5% प्रॉफिट दे के जाएगा. ऐसा नहीं कि नुकसान हो जाएगा. बट अगर थोड़ा सा मार्केट में फ्लक्चुएशन आया, इट विल ड्रॉप. और अगले महीने की 3 तारीख को मार्केट क्या होगा? कैन वी फोरकास्ट नाउ? सर इवेंट्स No. के बेसिस पे थोड़ा बहुत किया जा सकता नहीं, वही मैं 1 लॉट तो कर सकते हो. 1 लॉट इज कंफर्टेबल, बट डोंट गो विद 3, 5, 7 लॉट्स. 1 लॉट करो, 5 to 7%, 10% मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा. उतनों के लिए अपन को रिस्क लेने की जरूरत नहीं. 5% के लिए कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं. 30-40% जैसे हमको टैगा में मिला 60%, अडानी विलमार में मिला 50%. यस. और कौन से अप्लाई किया था हमने? जिस में हमने अप्लाई किया 40-50% प्रॉफिट मिला. तो अगर उतना प्रॉफिट मिल रहा होता, उतनी ही डिमांड मार्केट में होगी, विल गो विद इट. अगर नहीं है तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एक अप्लाई करो. और अगर 3 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्राइब होता है, 4 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्राइब होता है, तो गो विद सेकंड, एल्स नो सेकंड. डन? समझ में आया? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट? सर जैसे 3-4 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है तो ही आपका वो 1 लॉट अप्लाई करने का मतलब नहीं रहेगा ना. योर प्रोबेबिलिटी इज 1/4. दैट्स व्हाई वी ऐड सेकंड. तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी हो, 0 भी नहीं होना चाहिए. नहीं वो नहीं. जैसे 3 या 4 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, उसके बाद यूजुअली कितना % गेन देके जाता है, जैसे लिस्टिंग गेन यूजुअली? It somehow depends on company and day of listing. अगर डे ऑफ लिस्टिंग मार्केट बहुत अच्छा खुला है तो बुरी से बुरी कंपनी भी अच्छा प्रॉफिट, ठीक ठाक प्रॉफिट दे जाएगी. 4 टाइम्स में भी एक्सपेक्ट 5 to 7% तो आना चाहिए. हाँ ओके 5 to 7% आना चाहिए. अगर ये 4 से 5, 5 से 7 जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, गेन भी मल्टीप्लाई होगा इन दैट केस. ओके. क्लियर? डन? 4 से नीचे नहीं करना चाहिए अप्लाई आप मतलब यूजुअली? 3 से नीचे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ओके. 3 से नीचे तो गलती से भी मत करना. 3 के ऊपर है तो 1 लॉट तुम कंफर्टेबल है, क्योंकि 1 लॉट में हमको मैक्सिमम लॉस इज 1000 रुपीज. बट एक लर्निंग मिलेगा कि अप्लाई कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं. वो 1000 रुपीज कॉस्ट इज गुड फॉर दैट लर्निंग. और अगर 1000 रुपीज आया तो लर्निंग के साथ अर्निंग भी हो जाएगा. डन? चलो, थैंक यू वेरी मच.